we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी ईश्वरीय संपर्क में हम आपका स्वागत करते You know, हैं। we have come to almost the end of the year. जानते हैं हम इस साल के बिल्कुल अंत में आप पहुंचे हैं And a lot of things are going on in our minds. और हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। Perhaps you may be evaluating how this past year has been in your life personally. शायद आप व्यक्तिगत रूप में मूल्यांकन कर रहे हैं कि पिछला साल आपके लिए कैसे बीता है। You can't avoid those thoughts. आप उन विचारों को टाल नहीं सकते हैं। Some of it may be good, शायद इसमें से कुछ अच्छे हो, but overall, when people look at this year that has gone by, hardly we are, only a few days left, they are saying it is not a very good year. कुछ भी हो, आमतौर पर बीते हुए साल को जब हम देखते हैं तो लोग यही कहेंगे कि ये सच में इतना अच्छा साल तो नहीं बीता है। Of all the many difficulties we faced, the pandemic has been the most high. हमने जितनी भी मुश्किलों का सामना किया उनमें ये महामारी तो सबसे बड़ी ऐसे मुश्किल रही है। Some of us have lost our dear ones. हम में से कुछ लोगों ने इस समय अपने प्रियजनों को खो दिया है। Many of our friends have suffered, because of this virus, and they have overcome it. हमारे ऐसे बहुत से दोस्त रहे हैं जिन्हें ये वायरस हुआ था और वो उस पर जयवंत भी हुए हैं। Some have succumbed to the virus. और कुछ इस वायरस के शिकार हो चुके हैं। But regardless of what it is, when we come to the end of the year, we just want to praise God, we want to thank God. चाहे कुछ भी हो जाए, जब हम साल के अंत में आते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति करते, उसे धन्यवाद देते हैं। Why we are praising and thanking God is because we fully believe and understand that He is our Creator. हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करते हैं, उसे धन्यवाद क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे He सृष्टिकर्ता है। knows all about us. वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। Even in the midst of difficulties and different types of problems that we have gone through, we still believe God loves us. चाहे हम मुश्किलों में से होकर गए, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। So when we come to the end of the year, we come to God with a thanksgiving attitude. जब हम साल के अंत में आते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देने की मनोदशा के साथ में आते हैं। Thanksgiving attitude not just for the life that we are enjoying now, even for the difficult times that we had gone through. हम जिस जीवन का भी आनंद उठा रहे हैं केवल उसीलिए ही नहीं, लेकिन जिन मुश्किलों में से हम होकर गए हैं उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। The attitude of Job is something that I appreciate very much. अय्यूब की जो मनोदशा थी, सच में मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ। He was a gracious, great man. वो तो सच में बहुत धनी व्यक्ति था, महान व्यक्ति था। Someone who has received all the blessings from God. ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर से सारी आशीषें पाई थी। And at one point of time, when all the blessings were taken away from him, और जब ऐसा समय आया कि उसके जीवन से सारी आशीषें दूर कर दी and गई, he says, God gave and God took it away. Praise be to the name of the Lord. तब उसने कहा परमेश्वर ने दी और परमेश्वर ने ले लिया, उसके नाम की स्तुति हो। So we believe and we trust God knows all things and He will not let His people in trial all the time. हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और वो हमेशा अपने लोगों को इस तरह से परीक्षा में नहीं रखेंगे। There will definitely be a time He will restore us. निश्चय ऐसा समय होगा जहां पर परमेश्वर हमें फिर से नया There is बनाएंगे। going to be a time He will bless us. ऐसा समय होगा जब परमेश्वर हमें आशीष देंगे। For some people, they may say, "Oh, this year has been very good for me." कुछ लोगों के लिए जैसे कि वो कहते हैं ये साल तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। Somebody wrote a Thanksgiving prayer, and it was very interesting to read. It's a long prayer, but I would like to read only 3 or 4 important points from there. एक धन्यवाद की प्रार्थना है, ये बहुत बड़ी प्रार्थना है, लेकिन इसमें से 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। He says, "Thank you, God, for the times you have said no. They have helped me depend on you so much more." प्रभु ऐसे समयों के लिए धन्यवाद जहाँ पर आपने नहीं कहा और इसी के कारण मैं आपके ऊपर ज्यादा आधारित रह सका। We always want God to say yes for everything we ask. हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी मांगते हैं उन सभी के लिए परमेश्वर हाँ कहे। A lot of us doesn't like, this answer, no. और हम में से बहुत से लोगों को नहीं उत्तर ये पसंद नहीं है। So we say, "Oh, he said no, but I want this." But true thanksgiving, if you are at the end of the year, you have to say, "Thank you, Lord, for
saying no to some of the things I had asked you for. हम चाहते तो हैं परमेश्वर हाँ कहे, लेकिन ऐसा भी समय होता है कि इस साल के अंत में हमें कहना है, प्रभु आपने इस साल जो नहीं कहा है उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, Because they have helped me to depend on you so much more. क्योंकि उसने मेरी मदद की है कि मैं आप पर और ज्यादा आधारित रह सकूं। इसमें उसने मेरी मदद की है। Another important thing is thank you God for unanswered prayers. It reminds me that you know what's best for me even when my opinion differs from yours. धन्यवाद देने की एक और बात कि प्रभु आपने मेरी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि जब मेरा दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से अलग होता है फिर भी मैं जानता हूं कि मेरे लिए सबसे उत्तम क्या है, आपको पता है। Thank you God for the doors you have closed. They have prevented me from going where you would rather not have me go. धन्यवाद प्रभु कि मेरे लिए ऐसे द्वार बंद रखे जिसके कारण जहां आप नहीं चाहते थे वहां पर मैं नहीं जा पाया हूं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। What does it teach you? ये आपको क्या सिखाता है? All of us come to God with various needs and requests. हम सब परमेश्वर के पास बहुत सी अलग अलग जरूरतें और विनती लेकर आते हैं, And many a times God says, no, this is not for you. और कई बार परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। Do you get upset over that? आप उसके कारण परेशान हो जाते हैं, You may, शायद हो जाए, but God knows the best. लेकिन परमेश्वर सबसे उत्तम जानते हैं, उसे आपके लिए सबसे उत्तम पता If है। you believe God is your father and you're his son or daughter, then you can be confident that he grants everything according to his will, goodness and purpose. अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके पिता हैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार आपके लिए जो सबसे उत्तम होगा वही सही समय पर आपको देंगे, आपको वो दे देंगे। So understand, 2020 may be a difficult तो year, समझ लीजिए कि साल 2020 तो मुश्किलों से भरा हुआ साल रहा, but you look forward to the future. लेकिन हमें भविष्य की ओर आगे देखना है। When you look forward to the future, God is promising to us a great blessing. जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमसे महान आशीषों की प्रतिज्ञा करते हैं। In the book of Psalm, chapter 115, I want to read the 12th verse. भजन संहिता 115 में से मैं वचन 12 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। The Lord remembers us and will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा, वो इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। इस तरह कहता है। What a great, confident verses or scriptures that are revealed in this section. देखिए वचन के इस भाग में कितने अद्भुत रीति से ये सच्चाई बताई गई है। God will bless us. परमेश्वर हमें आशीष देंगे। You know why? जानते हैं क्यों? He has us in his mind. क्योंकि उसने हमें अपने मन में बसा रखा है। He remembers us. वो हमें स्मरण करते हैं। This whole psalm, Psalm 113 to 118 is a section of psalm that is sung during the Passover celebration. भजन संहिता 113 से लेकर भजन संहिता 118 तक ये तो फसह के समय में गाने वाले भजन हैं। ये उस समय में गाए जाने वाले भजन हैं। And from the beginning till the end, they usually sing when they celebrate the Passover feast. जब वो फसह का पर्व मनाते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इसे एक साथ गाते हैं। वो इन भजनों को गाते हैं। In the beginning, the psalmist in the 115 psalm, he says, God is the greatest one among all the nations. भजन संहिता 115 की शुरुआत में भजनकार कहता है कि परमेश्वर सभी देशों में सबसे महान है। Israel is called to trust God for his blessings. इस्राएल को अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर पर आशा रखने के लिए कहा गया है। And then in the 12th verse he says, the Lord remembers us and will bless us. और फिर वचन 12 में कहता है कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा। Oh, remembering these days is very difficult. इन दिनों में स्मरण करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। In a hectic situation we are in and the life very often we prone to forget many things. हम जिस तरह की तनाव भरी परिस्थिति में रहते हैं इस जीवन में हम आसानी से भूल जाते हैं। Sometimes we forget even very important things. कई बार तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को ही भूल जाते हैं। And sometimes we feel 24 hours is not enough, we need another 12 or 13 hours. हम कई बार सोचते हैं कि हमारे लिए 24 घंटे काफी नहीं है, हमें और 24 घंटे या 12 घंटे अतिरिक्त चाहिए सारे काम करने के I लिए। am beginning to feel I am forgetting a lot of numbers and names of people. और मैं भी देख रहा हूं कि मैं बहुत से नंबर्स और लोगों के नाम जो हैं वो भूलने लग गया हूं।
one person with so much of little connection as a human being, I am forgetting so many एक things. सामान्य मनुष्य के रूप में जिसके बहुत ही कम संपर्क है, मैं बहुत कुछ भूल रहा But हूँ। God, who is controlling the entire world, entire universe, He knows every one of them. And it says clearly, I remember you. The Lord remembers us and He will bless us. परमेश्वर जिन्हें सब लोगों के नाम पता है, सब के बारे में पता है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। निश्चय ही परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देंगे, वो हमें स्मरण You करेंगे। know, the Lord remembers us in our low estate. हम जब निचली दशा में होते हैं, उस समय परमेश्वर हमें स्मरण करते हैं। In the book of Psalm 136 verse 23, we read like this. भजन संहिता 136 वचन 23 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। To the one who remembered us in our low estate, His love endures forever. उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। He remembered us in our low estate. उसने हमारी दुर्दशा में भी हमें स्मरण किया You है। know, the very fact that God remembers us itself is a big thing for us. परमेश्वर हमें स्मरण करते हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है। Because psalmist in another place, in 8th Psalm, he points that to us. क्योंकि भजनकार भजन 8 में ये बात हमें बताता है। He says in 3rd and 4th verse of 8th chapter of Psalm, when I considered your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man that you are mindful of him, the son of man that you care for him? भजन संहिता अध्याय 8 वचन 3 में, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। So we are not supposed to be, or we are not actually entitled to be remembered by God. We are not entitled to be cared by God for His glory and the things that He has done. But still God cares for us, and that is because of His grace. देखिए, हम तो इस योग्य नहीं हैं कि परमेश्वर हमें स्मरण रखे या परमेश्वर हमें स्मरण करे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा और अनुग्रह के द्वारा हमें स्मरण किया है। He remembers us in our low estate. वो हमारी दुर्दशा में भी हमें स्मरण रखते हैं। What is this low estate? ये जो दुर्दशा है, ये क्या है? When people reject you, जब लोग आपका इनकार करते हैं, when people look down on you, जब लोग आपको नीचा देखते when हैं, people feel you are nothing, you are worth nothing, जब लोग सोचते हैं कि आप किसी काम के नहीं, आपका कोई मूल्य नहीं है, and God knows that and He remembers you to bless और you. परमेश्वर इसे जानते हैं और वो आपको आशीष देने के लिए आपको स्मरण करते Are हैं। you someone who is feeling like that today? क्या आज आप ऐसे हैं जो इस तरह से महसूस Have कर you रहे हैं? been rejected by people? क्या लोगों ने आपका इनकार किया है? Have you been looked differently because of your financial status? आपकी आर्थिक दशा के कारण क्या आप अलग दिखाई दे रहे हैं? Have you been ostracized by your community? आपके समाज के द्वारा क्या आपका तिरस्कार किया गया है? Because of your social status, have people rejected you? आपके सामाजिक स्तर के कारण क्या लोगों ने आपका इनकार किया या आपको दूर किया? Oh, dear friends, please understand, this God, He says, I remember you. याद रखिए दोस्तों, ये परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, I will bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा। What a great God. परमेश्वर कितने महान हैं। There were many people in the Bible who have experienced such difficulties and atrocities in their life. बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में मुश्किलें और परेशानियों का अनुभव किया। The people of Israel were humiliated. इसराइली जो लोग थे, उनका अपमान किया गया था। They were in the slavery. वो तो गुलामी में थे। In the book of Exodus we read that. निर्गमन की किताब में हम इसे पढ़ते हैं। And they were tortured like anything every day and extracted a lot of work from them. उन्हें प्रतिदिन सताया जाता था और उनसे जबरदस्ती बहुत काम करवाया जाता था। Pharaoh and all his managers were extracting work from these people. फिरौन और उसके सारे जो मैनेजर्स थे, वो इन लोगों से जबरदस्ती काम करवा कर लेते थे। When you read the book of Exodus, we read the scripture saying that these people were crying out to God. जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे, परमेश्वर की दोहाई दे रहे थे। In the 2nd chapter verses 25. निर्गमन अध्याय 2 वचन 25 में हम देखते हैं, The Lord remembered the Israelites. God heard their groaning. He remembered His covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob.
परमेश्वर ने उनका कराहना सुना, अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। इस तरह वचन कहता है, God remembered them. God was looking at them when they were crying out to him. परमेश्वर ने उन्हें स्मरण किया, और जब वो उसे पुकार रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें देखा। And that is the kind of God we have. और हमारे परमेश्वर ऐसे ही हैं। God remembers us in our low estate. हमारी दुर्दशा में परमेश्वर हमें स्मरण करते हैं। I want to tell you, if you call on him today because you have been dejected by people, मैं आपको बताऊं, अगर आज आप उसे पुकारते हैं क्योंकि लोगों के द्वारा आपका अपमान होता है, when people put you down, जब लोग आपको नीचे गिराते हैं, when you seek him, when you call on him, please be confirmed that this God knows you and he remembers जब you. आप उसे खोजते हैं, उसे पुकारते हैं, तो याद रखिए कि ये परमेश्वर आपको जानते हैं, वो आपको स्मरण करते In the हैं। Bible we read about another family situation. बाइबल में एक और पारिवारिक परिस्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं, Elkanah and Hannah. एल्काना और हन्ना के बारे में। And they were a family. और वो एक परिवार था। Hannah did not have any children. हन्ना की कोई संतान नहीं थी। Elkanah had another wife and she had children. एल्काना की दूसरी पत्नी थी और उससे बहुत से बच्चे हुए थे। And because of that she looked down on Hannah. और उसके कारण वो हन्ना को अपमानित दृष्टि से देखा करती थी। And she treated her very badly. और वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। Hannah was in tears. हन्ना आंसू बहाती थी। She was going into the presence of God and pleading with God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर से विनती करती She है। was praying for help. वो मदद के लिए प्रार्थना करती है। And God helped Hannah. और परमेश्वर ने हन्ना की सहायता की। It is interesting, the verse used there is God remembered Hannah. यहाँ पर दिलचस्प शब्द है कि परमेश्वर ने हन्ना को स्मरण किया। In the book of 1 Samuel 1:19 we read that. पहला शमूएल 1:19 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। God remembered Hannah. परमेश्वर ने हन्ना को स्मरण किया। And that is what we want to tell you at the end of this year. God knows you and God remembers you. इस साल के अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको स्मरण करते हैं, वो आपको जानते हैं। And the other thing I want to tell you in connection with this verse is God remembers us to give us another chance. इन वचनों के द्वारा मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि परमेश्वर हमें स्मरण करते हैं, हमें एक और मौका देने के लिए परमेश्वर हमें स्मरण करते हैं। There are many people who think they have wasted away the year 2020. बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उन्होंने सन 2000 साल पूरी तरह से ऐसे बर्बाद कर दिया है। Oh, the past year I was not at my best. पिछले साल मैं सबसे उत्तम काम नहीं कर पाया। I did not fulfill the purpose for which I was called. जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया था उसे मैंने पूरा नहीं किया। In my family, in my ministry, even in my workplace. मेरे परिवार में, मेरी सेवकाई में, यहाँ तक कि मेरे दफ्तर में भी। If you are feeling like that, this verse is encouraging you. Please know that the Lord remembers you and He wants to give you another chance, and that is why He has kept us alive till today. अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो ये वचन आपको प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर ने आपको एक और मौका दिया है और इसलिए उसने जीवित रखा In the है। book of the Old Testament, in the book of Judges, we read about a person by the name of Samson. पुराने नियम में, न्यायियों की किताब में हम शिमशोन नाम के व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। He was called by God to live a Nazarite life. परमेश्वर ने उसे बुलाया था कि वो नासरी का जीवन He जिए। was not supposed to drink wine. उसे पूरे जीवन काल में कभी दाखरस नहीं पीना था। He can't trim his वो hair. अपने बालों को काट नहीं सकता था। And he was called to deliver the people of Israel from the hands of Philistines. और उसे बुलाया गया था कि वो इस्राएली लोगों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाए। Imagine God called him with that kind of a purpose. कल्पना कीजिए, परमेश्वर ने उसे इस उद्देश्य के साथ बुलाया था। But he fell in love with the Philistine woman. लेकिन वो तो एक पलिश्ती स्त्री से ही प्रेम करने लग गया। वो उस लड़की से प्यार करने लग गया। And when nobody knew about the secret of his power, और जब उसकी सामर्थ का भेद क्या है ये कोई भी नहीं जानता था, because of his love and the torture that she was giving him, he revealed the secret of his power. लेकिन जिस लड़की से ये प्यार करता था उसके बार बार पूछे जाने के कारण उसने अपनी सामर्थ का भेद उस पर प्रकट कर दिया। He said, if you shave my hair, my power will be gone. उसने कहा, अगर मेरे बाल काट दोगी तो मेरी सामर्थ चली जाएगी। And that woman communicated it to the Philistine enemies
they planned and finally shaved his head. और उस स्त्री ने जाकर पलिश्ती शत्रुओं को ये बताया और उन्होंने आकर इसका सिर मुंडवा दिया The power was गone. और सामत चली He गई। could not have the energy, the strength that he had to defeat the Philistines. शत्रुओं को हराने के लिए अब उसके पास में उतना बल नहीं रहा, उतनी शक्ति नहीं रही। The Philistines came and caught him, और पलिश्तियों ने आकर उसे पकड़ लिया and they made him a joker, और फिर उसे मानो जोकर के जैसे a बनाया। person who makes fun and entertains people. ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों का मनोरंजन करता है। Someone who was highly respected, someone who was known as a deliverer of Israel. Now, in a situation, he was mocked by the Philistine ये people. तो ऐसा व्यक्ति था जिसे एक समय इस्राएलियों का छुड़ाने वाला गिना जाता था। पलिश्ती अब उसका मजाक उड़ा रहे And थे। it was that time when they brought Samson and put him in a big hall so he can entertain the people. उस समय शिमशोन को वहां पर एक बड़े हॉल में लाया गया ताकि वहां पर उपस्थित लोगों का वो मनोरंजन कर सके, कि वहां पर आए लोगों का मनोरंजन करें। And we read in the 16th chapter, verse 28, 29, and 30, the prayer that Samson offered for God to remember him at this time. अध्याय 16 वचन 28, 29 और 30 में हम पढ़ते हैं कि शिमशोन ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे छुड़ा ले। Then Samson prayed to the Lord, "O sovereign Lord, remember me. O God, please strengthen me just once more, and let me with one blow get revenge on the Philistines for my two eyes." Then Samson reached towards the two central pillars on which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and his left hand on the other. Samson said, "Let me die with the Philistines." Then he pushed with all his might and came down the temple on the rulers, all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. न्यायों की पुस्तक अध्याय 16 वचन 28 से आगे, तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वो अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वो घर सब सरदारों और उनके सारे लोगों पर गिर पड़ा, यानी जीते समय उसने जितनों को नहीं मारा था, मरते समय उससे ज्यादा लोगों को मार दिया। What a great prayer, my friend. मेरे दोस्तों, ये कितनी महान प्रार्थना है। And if you are in a situation where you feel, "Oh, I have wasted away my purpose, I have lost the purpose for which God has called me, and I did not really play a role that is as important as I should be," and remember, this God is willing to give you a second chance. अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में कितना समय बर्बाद कर दिया है, मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, तो याद रखिए, परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं जो आपको दूसरा मौका देते हैं, वो आपको सामर्थ्य देते हैं। My dear friends, it is not just with Samson. Even with Jonah, God gave him a second chance. दोस्तों, ये केवल शिमशोन के साथ ही नहीं हुआ, लेकिन योना को भी परमेश्वर ने दूसरा मौका दिया। Because of time, I am not going to go into the story. समय की कमी के कारण मैं आपको योना की कहानी तो अभी नहीं बताऊंगा। But you know how God gave him a second chance, because the first time he ran away to Tarshish and God brought him back and said, "Now you go and preach against Nineveh." और आप जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे दूसरा मौका दिया, क्योंकि वो तो पहले तर्शीश को चला गया था। परमेश्वर ने उसे वापस लाया और कहा कि अब तो निनवे में जाकर मेरा प्रचार करना। That is the same God we have today. आज हमारे परमेश्वर वही परमेश्वर हैं। If you are feeling that you have lost the main goal or purpose, I wasted away, and you can go to God, plead him, ask him for a second chance, and definitely he will empower you, he will bless you. अगर आप महसूस करते हैं कि मैंने अपने जीवन को ऐसे बर्बाद किया है, आप परमेश्वर के पास जाइए, दूसरा मौका मांगिए, परमेश्वर निश्चय आपको दूसरा मौका देंगे। And finally, I want to leave with you, the Lord remembers us to grant us our expectations. और फिर अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें स्मरण करते हैं ताकि हमारी जो अपेक्षा हमने उससे की है उसे दे सकें। The book of Jeremiah, 29th chapter, verse 11,
is a very, very popular verse and it's known by many Christians. यिर्मया अध्याय 29 वचन 11 तो बहुत ही विख्यात ऐसा वचन है, बहुत से विश्वासी इसे अच्छे से याद रखते हैं। And it says, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a future and a hope." क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। For I know, मैं जानता हूँ, I remember मैं स्मरण करता हूँ, the plans I know, मैं उन योजनाओं को जानता हूँ, plans to only prosper you ये केवल आपको संपन्न करने के लिए यही है, and not to harm you. तुम्हारी हानि के लिए नहीं है। What a great verse. कितना महान वचन है। Dear friends, it makes us to depend on God दोस्तों, इसके कारण हम परमेश्वर पर आधारित होते हैं, because He remembers us, He knows us, and He does only what is good for us. वो हमें स्मरण करते हैं, हमें जानते हैं, और जो हमारे लिए भला है केवल वही करते हैं। And Romans 8:28 says, "And we know that in all things God works together for good to those who love Him." और रोमियो अध्याय 8 में कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। For all the people who are called according to His purpose, God works out His plan for good. जो लोग उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर अपनी योजनाओं को उनके जीवन में भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं। We look forward to a glorious year this year. हम अपेक्षा करते हैं कि ये साल, नया साल हमारे लिए महिमा का साल होगा। God can do that. परमेश्वर इसे कर सकते हैं। We may not be able to do it by ourselves. हम अपनी शक्ति में तो इसे नहीं कर पाएंगे। Of course, He uses us, हाँ, अवश्य ही वो हमारा उपयोग करते but हैं, it is He who is in control. लेकिन परमेश्वर ही है जो नियंत्रण करते हैं। Therefore, it is important we surrender our lives to Him, give ourselves over to Him. और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपना जीवन उसे समर्पित कर दें। I want to complete by or finish by reading Job chapter 42 verse 2. अय्यूब अध्याय 42 वचन 2 मैं यहाँ पर पढ़कर संदेश खत्म करना चाहता हूँ। He says, "O Lord, you can do all things and none of your purposes may be thwarted." वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती। Amen. आमेन। He can do all things and none of His purposes can be thwarted. वो सब कुछ कर सकते हैं और उसकी कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती है। And He did what He wanted to accomplish in Jesus Christ. और उसने यीशु मसीह में जो कुछ भी हासिल करना था वो सब कुछ किया है। He sent Him into this world. उसने उसे इस संसार में भेजा। He lived and died on the cross of वो Calvary. इस पृथ्वी पर जी और कलवरी के क्रूस पर मर He गए, rose again on the third day, और तीसरे दिन वो फिर से जी उठे bringing forgiveness for the sins of the whole world. और पूरे जगत के पापों के लिए प्रभु ने क्षमा लाई है। And now He is calling all the people to come to Him, और अब वो सभी लोगों को अपने पास आने के लिए बुलाते हैं। all who are weary and burdened, come to me. वो कहते हैं कि सब बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Isn't it the good news? क्या ये सुसमाचार नहीं है? And that good news is available for everyone. और ये सुसमाचार सभी के लिए उपलब्ध है। If you believe in Jesus Christ, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, surrender your life to Him, अपना जीवन उससे समर्पित करते हैं, be baptized in the name of Jesus Christ so you can completely own Him. आप यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं ताकि आप पूरी तरह से उसके हो जाएं, He is going to take control and He knows you, He remembers you. तो वो नियंत्रण करेंगे, वो आपको जानते हैं, आपको स्मरण करते हैं। The Lord remembers us and He will bless us. परमेश्वर हमें स्मरण करते हैं और वो हमें आशीष देंगे। Enter this year with that kind of a confidence and may God bless you and your family today. इस तरह के भरोसे के साथ में इस नए साल में प्रवेश कीजिए और निश्चय परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number